Gospel music and church choirs have a unique and fascinating history in Pakistan. As a primarily Muslim country, Christianity is a minority religion, but despite this, the Christian community in Pakistan has always had a strong presence and continues to thrive. The origins of gospel music and church choirs in Pakistan can be traced back to the 19th century when British colonialists first brought Christianity to the region. The first churches in Pakistan were established during this time, and with them came the introduction of gospel music and church choirs. Today, gospel music and church choirs continue to be an integral part of the Christian community in Pakistan, and they are a testament to the strength, resilience, and diversity of this community. Despite facing challenges and discrimination as a minority group, many Christian artists in Pakistan have been able to establish themselves in the country's music industry. These Christian artists have been able to create a unique and powerful sound that reflects the heavy spiritual burdens they carry, as well as their deep faith and passion for music. They are a testament to the power of music to bring people together and to inspire hope and positivity in the face of adversity. I'm Shane Anthony and I play drums for a band called Kashmir. I've been doing music all my life basically. Other than playing concerts professionally, I've won a Lux Style Award with the band, Pride of Pakistan Award. मेरा नाम अमोस आरिफ है और मैं एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक टीचर, कीज़ एंड सिंथ प्लेयर। ईशा में कोक फेस्ट हमने किया था, कुछ गॉस्पेल कॉन्सर्ट किए थे। जब मैंने गिटार सीखा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और कॉर्ड्स और रिदम्स बजाना है, मेरे दोस्त थे क्रिश्चियंस, तो वो मुझे कहते थे कि यार ब्रो तुम चर्च में क्यों नहीं बजाते। तब मैंने स्टार्ट किया, हल्का फुल्का चर्च में बजाना शुरू कर दिया। मैं जो हूँ बेसिकली एक पास्टर का बेटा हूँ। मेरे घर में ये चीज़ चलती रही है। डैड जो थे वो एक क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं, वो उन्होंने एक हारमोनियम सीखे से उसके बाद वो पास्टर बन गए। When we start off, we usually hang out at our church. It's not necessarily pray, but a lot of sports going on and a lot of other activities such as music. All the kids who played musical instruments took part in it, but that also inspired other kids to want to learn musical instruments so they could take part in that. It just shows you how many people play music in the community. और अक्सर म्यूजिशियंस आए हुए थे चर्च में, गॉस्पेल मीटिंग्स होती थी, इवेंट्स हो रहे हैं, तो मैं अगर नहीं भी बजा रहा तो मैं चला जाता था वहाँ पे, गिटारिस्ट कोई बजाने आया हुआ है, तो मेरे दोस्त बता रहे होते थे भाई इसको गिटार का शौक है, तो वो मुझे ऐसे गिटार मेरी तरफ करके नेक करके वो बजा रहे होते थे। इस तरह से मेरी जर्नी रही कि मैं लोगों को देखता रहा, चर्चेज में मीटिंग्स में जाता रहा, संडे टू संडे जाके वहाँ गिटार लगा लिया और बजाना शुरू कर दिया। फिर वो इस तरह से मैंने याद करना शुरू किए गॉस्पेल सॉन्ग। तो मेरी तरबियत जो हुई है इसी माहौल में हुई है बेसिकली। डैड पास्टर थे तो उस चक्कर में हमारा रोल बहुत ज़्यादा हो गया, कीबोर्ड बजाना, क्वायर को लीड करना, वर्शिप संडे की जो करनी होगी वो हम लोग किस तरीके से करेंगे। Gospel music is a powerful and meaningful way for Christians to express their faith and connect with other members of their community. For many Christian musicians in Pakistan, creating and performing gospel music is not just a passion, but a calling. गॉस्पेल है, उसका लिटरली मतलब है गुड न्यूज़। रूह की ग़िज़ा कहते हैं क्रिश्चियंस में म्यूज़िक को। जब मैं कमर्शियल में गया सीखने के लिए कि गॉस्पेल म्यूज़िक में और कमर्शियल में क्या डिफरेंस है, मुझे क्या चीज़ सीखनी है, वहाँ पर हम लोग अपने आप को ना शो ऑफ कर दें। कमर्शियल में अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है, अपने आप को प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करना है, लेकिन गॉस्पेल में आपको अपने आप को कम करके रूह के ताल्लुक से चीज़ों में बढ़ना होता है। आपको प्रे में ज़रूर म्यूज़िक लाजमी चाहिए, प्रे क्योंकि हमारी कंप्लीट नहीं होती। मुझे चर्च के सॉन्ग्स, गॉस्पेल सॉन्ग्स कवर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं उस तरह से मेरी जर्नी चलती रही कि मैंने चर्चेस का एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। तो वो एक एक्सपीरियंस आपका जो है गॉस्पेल म्यूज़िक में डिफरेंट होता है। रही बात क्वायर की, क्वायर जो है, क्वायर इट्स अ हार्मनी। डिफरेंट वॉइसेस को डिफरेंट नोट्स में जब गाया जाए तो वो एक क्वायर की शक्ल देती है। वो यूनाइट जब होते हैं सब तो वो एक एम्बियंस बनाता है। We have these choir competitions that happen. So like we have multiple churches and every church has their choir. There's like a proper competition who's the best choir. So like people take it very seriously. जब छोटे से थे, जो चाचू थे वो भी एक क्वायर लीडर थे। एक ड्रेस में सारों ने खड़े होना है, वाइट एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन था उस टाइम पे, तो वो उस तरीके से सारों ने क्वायर के सामने, माइक के सामने खड़े होना है और तो सारों ने एक साथ मिलकर गाना है। और चर्च में सैटरडे फ्राइडे को कुछ अगर बड़ी कन्वेंशंस हो रही हैं उसके लिए प्रैक्टिस होती थी। But it did definitely make me closer to music because it was such an integral part of my life, right? So I had to go to practice,
I learned what harmonies are, how people sang in a group. I don't think it really helps me with my drums, but it helps me understand what singing is and how I can play drums to that singing. काफ़ी म्यूजिशियंस हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक नाम है शालम जेवियर, गम्बी ड्रमर जो हैं ये। हमें अच्छा भी लगता है कि वो क्रिश्चियंस हैं और वो उनका इतना बड़ा नाम है। Someone who inspired me to start playing drums is Gumby, who is also a Christian. The representation is pretty strong actually. Churches in Pakistan have a rich history of music and choirs, and these choirs have produced some talented and well-known musicians. Pastor is the main character of our church. The people say that building is the church. Actually, church means congregation, the people, where the God is present among them. Why we worship? We thanks to God, our Lord, who created us. खुदा का कलाम आपको कहता है कि आपको प्रस्तिश के लिए पैदा किया है। पास्टर जो है वो एक ब्रिज है खुदा के दरमियान और आपके दरमियान। बाइबल के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक चीज़ ये सीखी है कि म्यूज़िक हमें नज़र आता है कि ये आसमान से आया, कि आसमान पे बजाए जाते हैं, फरिश्ते, हज़ारों फरिश्ते जो है बजाते हैं खुदा के लिए। हम अगर प्रस्तिश करते हैं, जिसको हम वर्शिप करते हैं, उसके सामने खड़े होके म्यूज़िक अपना प्ले करते हैं। अपनी प्रे हमारी एक टाइप की होती है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी होती है, लफ्ज़ों के थ्रू भी होती है, और डिफरेंट तरीके से हम लोग अपनी प्रेस को इस तरीके से भी करते हुए आ रहे हैं। Makes people want to go closer to music, makes people want to play music. It's encouraged, like I said, since we're kids. So we have music ingrained within our culture, and that's through our faith. So it's not seen as something bad, instead it's really encouraged and we love it. वैसे तो बहुत ज़्यादा मैंने ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जो सपोर्ट कर रही हैं म्यूज़िक को, लेकिन चर्च के जो पास्टर फादर्स होते हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट वो कर रहे होते हैं। तो मेन वो होते हैं फादर्स या पास्टर जो हमें लेके चल रहे होते हैं, सपोर्ट उनकी ज़्यादा होती है। हम म्यूजिशियंस हैं, जैसे अगर हम वहाँ पे प्ले कर रहे हैं तो हमें वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमें पूछते हैं तुम्हें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए या तुम्हें ये कोई मुश्किल है, तो सबसे ज़्यादा वो हम सबको लेके चल रहे होते हैं। देखो पास्टर एक नसीहत करता है वर्शिपर को, व्हेन यू वर्शिप, आप ये देखें लोग जो है ऑडियंस नहीं है, खुदा फिर आपका ऑडियंस हो जाता है, खुदा आपके सामने जो है तख्त नशीना हो जाता है। इसलिए आप ये कि पास्टर जो है एक आम आदमी नहीं है, पास्टर को असिस्ट करना है, पास्टर को सिखाना है, पास्टर को उनको बताना है। एक अच्छा परस्तार, एक गाइडेंस आपको जो रूल कुदस की तरफ से एक पास्टर को मिलती है वो क्वायर को दे देता है। कि गॉस्पल के लिए ना कम लोग हैं जो मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में इसका जो है वो इतना म्यूज़िक का इतना रुझान नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में इसका बहुत ज़्यादा है। बाइबलर्ड होता है हमारे, बाइबल के अकॉर्डिंगली हमारी वर्शिप और ये सारी चीज़ें हमारी बहुत अहम है। प्रस्तिश से आपके अंदर नरमी पैदा होती है, जेंटलनेस हो जाती है, मीकनेस हो जाती है, और खुदा आपकी ज़िंदगी को तैयार करता है। इसलिए वो कहते हैं कि मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदा के लिए गाते बजाता रहो। As far as music is concerned, it's a major part and community welfare as well. So the concerts that we have, they're all charity. All the profits that we make, they're for charity. There was Shamrock Festival that was held to rebuild basically St. Patrick's Cathedral in Sadr. It's one of the oldest churches in the subcontinent, if I'm not mistaken. Our band also helped out in that, and all the proceeds went to that cause. लोग इतनी परेशानियों में, दुख तकलीफ में जाते हैं, संडेज को वर्शिप जब करते हैं तो उनको सुकून मिलता है। आप गाएंगे तो आपको बरकत मिलेगी। कोई भी इंसान के पैदा होने का मकसद ये है खुदा की प्रस्तिश करना। These young musicians have the potential to become great ambassadors of Pakistani music and culture on the international stage, if they are given the opportunity and support to do so. Continuity and consistency are key factors in developing and honing musical talents. By providing young musicians with consistent access to choir practices and training, they can develop their skills and gain the experience needed to perform on prestigious stages around the world.